class, we saw, we concluded about the discussion about the soul and the super soul, and how we are not this body but we are soul. And then Krishna explains from verse number 31 to 37 about Sakam Yuga Karma, or performing prescribed duty gives enjoyment. Aditya, we can do now. Okay, so we'll start with the verse number 34. So now the question or the another angle is given by Krishna, that perform your duty, because performing your duty is better than not doing anything else. And we discussed in length about this in the 31, 32 and 33 verses, and further we'll discuss from verse number 34, 35, 37, 37. So let's start with verse number 34. Akirtim chapi bhutani katisyanti te avyayam sambhavitasya chakete marna atirichyate. People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. Both as friend and philosopher to Arjuna, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. The Lord says, Arjuna, if you leave the battlefield before the battle even begins, people will call you a coward. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, then my advice is that you do better to die in the battle. For a respectable man like you, ill fate is worse than death. So you should not flee for fear of your life. Better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing my friendship and from losing your prestige in society. So this final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battle and not withdraw. So now here Krishna is specifically saying to Arjuna, it is better to do your duty and die in the battlefield than to run away. तो कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप लड़िए और उससे अच्छा कि मतलब बैटलफील्ड छोड़ के मत जाइए। तो पहले के ज़माने ना एक बार किसने शब्द दे दिया उसको वो टिका कर रखते। तो अगर समझो किसी का हेल्थ गया तो कुछ हो जाता है, पैसा गया तो थोड़ा कुछ गया नहीं समझते, लेकिन अगर ये शब्द दिए या वचन दिया और नहीं पाला तो समझते बहुत कुछ चला गया। यानी पहले का हम देखेंगे तो सब लोग क्या बोलते हैं कि रघुकुल की कुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पे सब लोग ने कहा है कि लड़ने वाले, वॉर होने वाला है। तो अगर आप भाग जाएंगे तो अर्जुन का जो नाम इतना खराब होगा कि लोग बहुत बुरा भला उनको बोलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति जो आदरणीय है, रिस्पेक्टेबल है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही बुरा है कि कोई उसका नाम बदनाम करे या कोई इल नेम्स या बैड नेम्स उनको बताए। और यहाँ पे सेम अर्जुन के साथ ऐसा होने वाला है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप लड़िए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग जब आपका अपयश गाएंगे तो आपको सहन नहीं होगा। एंड फॉर अस ऑल्सो ना, अभी के लिए भी अगर कोई हमें मारेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई अपने बैड नेम्स बताएगा ना, इट हर्ट्स अ लॉट। मतलब अगर हम देखेंगे ना हमारे जीवन में भी, तो बुरे शब्द अगर कोई कहे ना वो ज़्यादा हैवी लगता है। और इसीलिए हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए जीवन में कि किन शब्दों को सीरियसली लेना चाहिए। वी शुड नॉट टेक our equals and friends words seriously if they are not encouraging to us. अगर कोई शब्द कोई equals या कोई और कह रहा है जो हमें encourage नहीं कर रहा, of course on the right path, अगर वो डिस्कस है गलत चीज़ ले तो बराबर ही है, then we should not take seriously.
हमें क्या सीरियस लेना है, तो भगवता भागवतम संतों के जो उपदेश है उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। अदरवाइज बाकी चीज़ों को उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अदरवाइज विल बी इन डिफिकल्टी, बिकॉज हर किसी के जीवन में अगर हम देखेंगे ना, तो कुछ तो लोग अच्छा कहेंगे बट बहुत लोग बुरा भी कहेंगे। और मैंने देखा है यंगस्टर्स को, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी लोग गलत संगति कर लेते हैं जस्ट टू गेन फ्रेंड्स अप्रूवल। कुछ भी करते हैं, मतलब दे गो ऑन द रॉन्ग लाइन, ताकि जो फ्रेंड जो अप्रूव करे कि हम साथ में हैं और जो करें। सो दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। द अप्रोच शुड बी दैट लेट अस नॉट टेक seriously things if they are not for our betterment, and only take that thing seriously which will help us further in our spiritual journey and also materially where possible. So again, Krishna is explaining this further, verse number 35. Bhayadana uparatam mamshante tvam maharatha येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. So, see यहाँ पे, अगर कोई भाग के जाता है रणभूमि से तो उसको कायर कहा जाता है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं ये व्यक्ति जो है। यस आदित्य, कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। अच्छा, ईयरफोन निकाल देता हूँ। हरे कृष्ण, कैन यू हियर मी नाउ? It's better. I hope अभी आवाज आ रहा है। ओके, अच्छा ठीक है। हाँ, सो मैं कह रहा था कि अगर कोई भाग जाता है ना, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि बिकॉज ऑफ सेंटिनेस कोई भागा है। सब लोग क्या कहेंगे कि ये कायर है, बिकॉज कायरता की वजह से भाग रहा है। इज अ जनरल थिंग विच इज देयर इन पब्लिक। सो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी इन द बैटलफील्ड एंड डू द ड्यूटी। Purport. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjuna. Do not think that the great generals like Duryodhana, Karna and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. तो वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये सोचेंगे नहीं कि आपने दया भाव से या कंपैशन के वजह से ये बैटलफील्ड छोड़ दिया है। आपने बैटलफील्ड क्यों छोड़ा है? क्योंकि आप अपने जीवन के लिए डरे हुए हो, और इसलिए आपका जो एस्टिमेशन है लोगों का वो नीचे चला जाएगा और आप हेल में जाया करेंगे। सी मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स हम हमेशा जीते हैं बाकी लोगों के जो एस्टिमेशन है उसको पूरा करने के लिए। जैसे अगर मार्क्स कम आए तो माता पिता क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तो हमेशा हम डर में जीते हैं। कुछ भी चीज़ करेंगे तो कुछ भी कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये हमें हमेशा डर रहता है। एंड दिस इज़ वेरी जनरल एंड कॉमन। इवन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप भाग के चले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने रण दया भाव छोड़ा है, लेकिन आपने रण क्यों छोड़ा? कायरता से छोड़ा है। तो इसीलिए परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। भले हम उसको समझे या कोई बोल दे। जितने भी इलेक्शंस होते हैं, पार्टी इलेक्शंस या जो भी है, वो लोग जो है ना परसेप्शन पे जीते हैं। अगर आप देखोगे what people perceive about it, और जितने आप आगे जाते हैं जीवन में, as you go on becoming higher in your life, जैसे कोई लीडर पोजीशन में है
तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है। दिस इज व्हाट इज टोल्ड। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल हम अलग हो और परसेप्शन अलग हो। वी शुड ट्राई टू बी एज गुड एज वी कैन, but there will be times when we will not be meeting the expectations, हम expectation meet नहीं कर पाएंगे, but उस समय भी एटलीस्ट और इंटेंशन भी शुड बी क्लियर कि हमारा इंटेंशन है कि जो सही है वही करना है। बट इसके वजह से people should not have wrong perception about us, otherwise it will be difficult. Especially for leaders it's very necessary, and हमने अभी इलेक्शंस में भी देखा है, बिकॉज ऑफ सम परसेप्शन की वजह से हार गए। सो दिस इज व्हाट इज टोल्ड हियर। वी शुड अंडरस्टैंड द जनरल थिंग्स। आई थिंक पल्लवी मिश्रा हैज रेज्ड her hand. Yes. What is the question? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि मतलब जैसे कृष्ण जी ने उन्हें समझाया अर्जुन को कि अगर वो दया भाव से ये युद्ध नहीं लड़ेंगे तो उन्हें मतलब उनके जो विरोधी हैं वो उन्हें कायर कहेंगे। तो उन्होंने मथुरा मतलब जब वो मथुरा में रहते थे तो मथुरा पर जब बार बार आक्रमण होता था तब उन्होंने मतलब वहां पर एक ऐसा कार्य किया था जिसके वजह से उन्हें एक नाम दिया गया था। वो नाम था रणछोड़ कृष्ण जी को। और उसके लिए उन्होंने वहां पर द्वारिका में जाकर घर बनाया था, मथुरा को हटा दिया था। तो फिर जब Yes. उन्होंने खुद युद्ध एक बार हटा दिया और फिर वही टीच वो कर रहे हैं किसको, अर्जुन को, और क्या कह रहे हैं कि तुम लड़ो। तो दोनों के Yes. टाइम पे सिचुएशन एक ही है, बट उनके लिए वो सही है बट इनके लिए नहीं, तो ऐसा क्यों? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सो पल्लवी मिश्रा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कृष्ण जी कहते कुछ है और करते कुछ और है। यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि आप रणभूमि से मत भागो, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। और यहाँ पे कृष्ण जी जो है ना, उन्होंने वहां से भाग गए। तो देखो ये दोनों केस में है ना कुछ विशेषताएं है जिसमें हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जरासंध की जो मृत्यु है वो कृष्ण के हाथों नहीं लिखी गई थी। इवन काल यवन जो आते हैं ना, दोनों को वरदान था या दोनों को जो भी बेनिडिक्शन था कि कृष्णों के हाथों उन्हें नहीं मरना था। इसलिए काल यवन जो है मुचुकुंदा के हाथों मारे गए और यहाँ पे जरासंध जो है भीम जी के हाथों मारे गए। दिस वन रीजन। सेकेंड रीजन जो है, कृष्णा ने जरासंध जी को 17 बार हरा के छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि कृष्ण का काम है कि असुरों का संहार करना और संतों की रक्षा करना। लेकिन असुरों के संहार के लिए असुर को एकत्रित कहीं तो करना पड़ेगा, तब संहार फटाफट हो जाएगा ना, नहीं तो समय लगेगा यहाँ जाना वहां जाना। तो जरासंध क्या करते थे, हर बार हारते थे, लेकिन वो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे कि हर बार 2-3 अक्षौणी सेना लेके आते थे, या उससे ज्यादा भी, मतलब जैसा बल पड़े से लेके आते थे, और कृष्ण उधर मार रहे थे और सिर्फ जरासंध को छोड़ देते ताकि हर बार वो असुरों को लेके आए और वो उसको मार सके। तो ये सेकंड रीजन है कि वो छोड़ गए। थर्ड रीजन क्या है, जैसे हम बोलते ना, द किंग्स वाइफ इज अबाउ सस्पिशन। तो भगवान कुछ भी करे उस पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते क्योंकि वो भगवान है। किंतु भगवान जो इंस्ट्रक्शन देते उसको हम फॉलो करना चाहिए, ये जनरल रूल है। जैसे अगर इस देश का कोई राजा है तो राजा अगर गलत भी करेगा उसको जेल नहीं होगी, लेकिन हम अगर गलत करेंगे तो हमें जेल होगी। इसलिए हम दोनों की रिलेटिव पोजीशन बहुत अलग है, ये हमें समझना चाहिए। और उसके बाद ये जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस है जहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने को बोल रहे हैं, तो अगर आप देखोगे अर्जुन ने प्रण लिया था कि वो इसमें लड़ेंगे और जीतेंगे। इवन भीम जी ने प्रण लिया था कि वो जो दुर्योधन के जो 100 भाई है सबको मारेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों की प्रॉमिस को पूरा करने में मदद करते। भले उनका खुद का प्रॉमिस टूट जाए लेकिन भक्तों का जो प्रॉमिस है उसको टूटने नहीं देते। तो इसीलिए यहाँ पे वो क्या करते हैं कि अर्जुन को बोलते कि आप लड़ो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण नहीं मार सकते, कृष्ण भी सब कुछ मार सकते, सब कुछ खुद कर सकते थे,
लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सारा क्रेडिट अर्जुन को दे रहे हैं। अगर आप आगे पढ़ोगे ना भगवद गीता के 11वें चैप्टर में, तो विश्व रूप में आता है, यूनिवर्सल फॉर्म जो है चैप्टर का नाम है, तो उसमें आता है कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देखो मैंने सबको ऑलरेडी मार दिया है, दे आर ऑलरेडी किल्ड, आपको सिर्फ यहाँ खड़े रह के बाण चलाने, बस आपकी विजय निश्चित है और सब कुछ मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ खड़ा रहना है। तो यहाँ पे भी कृष्ण ही एक्चुअली सब कुछ कर रहे हैं, और कृष्ण जो भी करे दैट इज ऑल राइट एंड ऑल परफेक्ट एंड ही गेट्स अ न्यू नेम। जैसे कृष्ण जब चोरी करते हैं तो उनका नाम होता है माखन चोर, किंतु भगवद गीता में कहीं लिखते नहीं है कि आप चोरी करो, कहीं ऐसा इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, क्योंकि अगर हम चोरी करेंगे तो जेल में जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं उसको हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए, बट कृष्ण क्या कह रहे हैं उसी को हमें इमिटेट या उसके हमें पालन करना चाहिए। दैट इज अ रूल which has to be followed once and for all, बिकॉज भगवान ने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया, हम नहीं उठा सकते। वो भगवान ने 16,108 शादी की, हर किसी को एक बंगला दिया। यहाँ पे आप किसी हस्बैंड को पूछो एक साउथ मुंबई में एक बंगला देके दे अपनी वाइफ को, पसीने निकल जाएंगे। सो कृष्ण की जो भी एक्टिविटीज है उसे सिर्फ रिलीज करना है, सुनना है, और जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए वो हमें फॉलो करना, ये हमारा जनरल रूल होगा। आई होप आपको समझ में आया, या फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं? यस नहीं प्रभु जी, समझ में आया। ये समझ में आया ना? बिकॉज जी प्रभु कृष्ण जी। इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। तो हम लोग उसको ये नहीं कर सकते, बट ही हैज गिवन स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू अस दैट वी नीड टू फॉलो, बिकॉज वी आर इन द लॉज ऑफ कर्मा। हमारे पे कर्मा काम करता है, गलत करेंगे सजा मिलती। कृष्ण अगर गलत भी करते हैं तो भी वो सही है, क्योंकि उनको कुछ, जैसे कृष्ण ने बहुत सारे असुरों को मारा, शिशुपाल को मारा, उसके बाद कंस को मारा, तो जिन्हों को भी कृष्ण ने मारा है दे आर लिबरेटेड। वो भागवत भगवत गए, हम जिसको मारेंगे वो लिबरेट थोड़ी होगा, वो तो अपने वो कर्ज लेके जाएगा कि अगले जन्म में वो हमें मारेगा, प्लस हमें बहुत सारा और रिएक्शन भी मिलेगा। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड हिम, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट इमिटेट हिज एक्टिविटीज। वर्स नंबर 36। अवाच वादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामगातं ततो दुःखतरं नु किम्। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? तो आपके जो दुश्मन है वो आपको अलग अलग तरीके से आपकी निंदा करेंगे, और इससे बड़ा दुख क्या है? Purport. Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea of compassion and described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. तो भगवान जो है ना, वो पहले से ही कह रहे थे कि ये कंपैशन आपके लिए अच्छा नहीं है, और अभी वो अलग अलग तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं कि आपका कंपैशन अच्छा नहीं है। आई थिंक आप लोग को सुनाई दे रहा है, मेरे यहाँ पे अच्छी बारिश आ रही है, आई डोंट नो हाउ द वॉइस इज, आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। So again, verse number 37 और 38 जो आगे के हैं, they are like या बैकग्राउंड नॉइस आएगा बिकॉज अच्छी खासी बारिश हो रही है, इसलिए मैं ईयरफोन यूज कर रहा था, बट ईयरफोन में आप बोल रहे बफरिंग हो रहा है। सो व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव?
आई हरे थिंक कृष्ण प्रभु जी, इतना कुछ डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ मुझे भी लग जी रहा है प्रभु ज्यादा। जी। ओके, हरे कृष्ण। सो वर्स नंबर 37, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. So अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो फायदा है, और कृष्ण कह रहे हैं अगर आप लड़ोगे तो फायदा है। समझो आप लड़े और जीत गए तो पृथ्वी पे राज करोगे, और अगर आप लड़े और मर गए तो डायरेक्ट आप स्वर्ग जाओगे, तो आपका कोई लॉस नहीं है। Even though there was no certainty for victory for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed there, he could be elevated into the heavenly planets. तो इसलिए सी इन लाइफ ऑल्सो ना, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम बोलेंगे बस हो गया, अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं करना है कुछ भी, बस नाउ वी आर डन, अभी आगे नहीं जाना है। इन ऑल दिस कंडीशंस जो भी है अपने जीवन में, वी शुड जस्ट स्ट्राइव, वी शुड नेवर एवर गिव अप। कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। और इसलिए हमारे साथ ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए हु आर इक्वली डिटरमाइंड इन लाइफ। अगर ऐसे लोग की दोस्ती रहेगी तो हम भी कभी गिव अप नहीं करेंगे। अधिकतर लोग जो आज गिव अप कर देते हैं, सुसाइड करते हैं या बहुत कुछ जो गलत करते हैं, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी हैव फ्रेंड्स हु आर नॉट द वंस दे शुड हैव। गलत दोस्ती और गलत संगति के वजह से ये सब होता है। एंड देयरफॉर वी शुड हैव फ्रेंड्स मोस्टली विद डिवोटीज हु विल हेल्प अस इन सिचुएशंस वेयर इट्स नीडेड। और इस तरह हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बिकॉज ये जीवन तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। समझो हमने कुछ ट्राई किया, अगर सक्सेस हो गया तो यहाँ पे फेम मिलेगा, अगर फेलियर होगा तो आगे के चैप्टर्स में आएगा, थर्ड फोर्थ और आगे में। कृष्णा डजंट सी सक्सेस और फेलियर, कृष्णा सीज और एंडेवर। क्या हमने एंडेवर किया? क्या अगर हम अपना 100% डालते हैं और रिजल्ट्स हमारे हिसाब से नहीं आता, फिर भी हम सक्सेसफुल है। इसका मतलब अगर हम अंदर एफर्ट्स नहीं डालते और समझो रिजल्ट्स बहुत फेवर में आते हैं, तो एक्चुअली इन द आइज ऑफ कृष्णा वी हैव नॉट डन आवर बेस्ट, भले बाहर से हम कितने भी सक्सेसफुल दिखे। एंड आवर लाइफ एम इज टू डू व्हाट इज लाइक बाय कृष्णा, एंड दैट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। तो हम भक्ति के लिए जो भगवान को पसंद है वो हम करते हैं। So this is the last verse in this contest. सुखे दुखे समाकृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो वो कह रहे हैं, डू दो फाइट for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by doing so you shall never incur sin. So now from this verse, Krishna is saying to Arjuna that you fight without considering any externals। मतलब लड़ने के लिए लड़ो,
डू दिस एज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। और इसमें क्या क्या दिया है, एक तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, खुश या दुख, इसके बारे में मत सोचो। लॉस और गेन, लॉस और गेन का मतलब क्या, नुकसान या फायदे के बारे में मत सोचो। एंड विक्ट्री ऑफ डिफीट, यानी जय और पराजय के बारे में मत सुनो। अगर ये सब आप करोगे तो क्या होगा, आपको कभी पाप नहीं लगेगा। सो इन ऑर्डिनरी लाइफ ना, whatever we do, there is some sin which is there। लेकिन जब हम कृष्ण के हिसाब से काम करते हैं तो हम लोग को वो सिन नहीं लगेगा। So this is what is there. So let's see what purport says. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no concept of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the actions of Krishna consciousness। तो अभी कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं इससे लड़ो, बस मेरी इच्छा है। तो अगर भगवान की कोई इच्छा है और अगर हम उसे पूरा करते हैं, then we are successful in life. We do not need to think anything। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जीवन में जहाँ पे जो भक्त है उन्होंने कृष्ण की इच्छा पूरी की और जीवन में नेम इनफेमी के बारे में सोचा नहीं है कभी, एंड देयर लाइफ इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। बिकॉज इस दुनिया का जो नेम फेम है ना, वो क्षणिक है। आपको जितना जल्दी ऊपर लेके जाएगा उससे जल्दी आपको नीचे लेके आएगा। ये ऐसा इस दुनिया का नेम फेम है। और इसीलिए इस दुनिया का जो नेम फेम है उससे अच्छा है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। एंड अर्जुना वॉज वेरी लकी टू हैव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण सामने खड़े और बता रहे कि आप ये करो। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, प्रॉफिट और गेन, विक्ट्री और डिफीट ऑफ कृष्ण। कोई भी कार्य करोगे ना, सुख और दुख रहेगा ही, उसमें कुछ फायदा और नुकसान रहेगा और उसमें जीत और हार रहेगी। But we should not see into the specifics. So I will give you many examples कि क्यों इसमें नहीं जाना चाहिए और किस तरह हमें कार्य करना चाहिए। समझो, I will give you some examples. So आपको टाइटैनिक का एग्जाम्पल पता है कि टाइटैनिक अपने फर्स्ट वॉयज में डूब गया। So there was one family which had earned lot of money and saved for going to Titanic। लेकिन उसका एक लड़का था और उससे कुत्ते ने कुछ काट लिया, उसको बीमारी हो गई एंड दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू टाइटैनिक एंड दे वर वेरी अनहैप्पी, दे वर इन डिस्ट्रेस कि हमारे जीवन का सपना था, हमें जाने को नहीं मिला। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, टाइटैनिक डूब गया एंड दे वर वेरी हैप्पी, अरे अच्छा वो नहीं गए, बच गए। सो देखो ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस कैसा क्षणिक है और कैसा पलटी मारता है। सो इसीलिए हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में हमें फंसना नहीं चाहिए। देयर आर ऑल अवर स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारा मन की स्थिति है। एक्चुअल में हैप्पीनेस डिस्ट्रेस से कोई सिचुएशन होती नहीं है। एक्चुअली विक्ट्री डिफीट सब कुछ भी नहीं है और एक्चुअली ये भी नहीं है। जैसे आई विल गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स इन दिस। सो बहुत सारे वॉर्स होते हैं। इफ यू सी देयर आर सो मेनी वॉर्स गोइंग ऑन। सो इफ यू सी वॉर में कोई एक कंट्री जीतता है, कोई एक हारता है। बट इफ यू सी स्पेसिफिक सो मेनी वॉर्स आर गोइंग ऑन, तो जो कंट्री जीतता भी है उसके भी बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली सो मेनी रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड, और जो हारता है उसका भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भले कोई कंट्री जीते या हारे, अंत में दोनों ही कंट्री का काफी नुकसान होता है और काफी समय लगता है वापस ऊपर आने के लिए। एंड वी कैन सी दिस नाउ when so many countries are fighting। तो इसका बारे में मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, you are all aware। Same way when distress comes, that is the time we strive hard और हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं। लेकिन जब हैप्पीनेस होते हैं तब रिलैक्स हो जाते हैं और we don't do anything। So if we see from objective point of view ना, at the time of distress our capacity increases। जैसे एग्जाम आ गई तो एग्जाम आती क्या करते हैं, हम पढ़ाई बढ़ा देते हैं और पढ़ाई में बहुत
फोकस आगे करते हैं बिकॉज हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन जब एग्जाम नहीं रहती तो हम कितना ढीला ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ हुआ। सो सी द थिंग विच इज डिस्ट्रेस is helping us to grow, and the place where we are happy actually we are becoming complacent and lazy. So isliye these are all different states of mind, and we should not be misdirected or we should not be distracted by this. We should always work as a matter of duty, and that will help us in the long run. That is what Krishna is saying. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness, and so there is no reaction to material activities. So whatever we do, we should offer it to Krishna. Whatever we are studying, whatever activities we do in devotional service, everything we should offer it to Krishna, and that will help us to go through the life so that there is no reaction to material activities, so that we don't incur any sin or we are not having any piety also, because even pious activities bind us, not just sinful activities. So pious activities are good actually, अगर कोई पता नहीं तो करना चाहिए, लेकिन they also bind us and we have to again take birth. But work in Krishna consciousness से क्या होता है, जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तब दोनों काम पायस और इनपायस हम दोनों से ऊपर आके सिर्फ भगवान के लिए काम करते हैं, एंड देयरफॉर वी आर सेव्ड फ्रॉम बोथ द रिएक्शंस. He who acts for his own sense gratification either in goodness or in passion is subject to reaction good or bad. तो जो अपनी इंद्रियों के लिए काम करता है, अपनी खुशी के लिए काम करता है, उससे सहन करना पड़ता है कभी खुशी और कभी गम, चाहे वो गुडनेस में हो या पैशन में हो, तो उससे वो सहन. लेकिन जब भगवान के लिए काम करते तो कुछ भी होता नहीं है. बट ही हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor is debted to anyone, and in the and as one is in the ordinary course of activity. It is said, Devarishi bhutapta nirinam pitrinam na kinkaro nayam rini charajan sarvatmana ya sharanam saranyam gato mukunda pariritya kartam. Anyone who has completely surrendered unto Krishna Mukunda, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. So, when we take birth, जब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, we have obligation to our parents, we have obligation to demigods, we have obligation to the sages, we have obligation to people in general, we have obligation to relatives, for humanity and our forefathers. ये सारा obligation रहता है जब हम जन्म लेते हैं, because they have all helped us to grow, to take birth. आगे जो भी हमारे साथ हुआ है वो सब में ये हमें हेल्प करते हैं. लाइक सेजेस की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिला है जो भी है. अगर डेमीगॉड्स नहीं है तो हमें हवा, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो बारिश आ रही है, जो सनलाइट है, ये सब के लिए हम ऋणी है उनके. उसके बाद पेरेंट्स के तो हम ऋणी है ही, रिलेटिव्स के भी ऋणी है, बिकॉज चाचा मामा नाना सब कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज में काम आते हैं. और ह्यूमैनिटी तो पक्का है ही, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी लिव इन सोसाइटी, तो वी हैव सम ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दैट. सो ये सबके लिए ऑब्लिगेशन होता है. बट व्हेन वी बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस, व्हेन वी प्रैक्टिस भक्ति ऑफ कृष्णा, देन all these obligations are being fulfilled by us becoming a devotee. मतलब because demigods are part and parcel of Krishna, so जो भी उनके प्रति ऋण था, शेष प्रति ऋण था, अगर हम भक्त बन जाए तो वो पूर्ण होता है. ये शास्त्रों का वर्डिक्ट है. तो इसीलिए
we should become a devotee of Krishna and we should chant his name, we should glorify him so that all our debts to all the person are being cleared off and we can go back to God. So this is a general verdict. और जो भगवान का भक्त नहीं है, he has to do all this, otherwise he'll be indebted. So this is very important verse quoted by in many times by Srila Prabhupada also, and we should remember that अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. I think I will find the verse also if I can. Yeah. So this line, श्रद्धा शब्दे विश्वास कह सुविध निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है. If you see the second line, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है. This is the main thing. We should have faith in this, that if I am doing bhakti of Krishna, I am actually doing all the work and I am fulfilling all the desires of everybody. This should be our faith while we are practicing bhakti. और इस तरह में भक्ति प्रैक्टिस करनी चाहिए. So from verse number 39 verse we'll see. एषाते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्व इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहस्यसि. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Partha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. So, अभी भगवान कहेंगे कि आप कर्म करिए या काम करिए, बट फल की इच्छा मत रखो. जो हम लोग सुनते हैं ये हमको बताने वाले हैं. That we will not have any expectations while doing the work. That is detached work. We will do work. So इसका मतलब ये नहीं है कि we are detached from the work, but at the same time we will do work as a part of duty. ये बहुत ही important concept है. कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कार्य करते तो अटैच हो जाते हैं कि ये मैंने किया मुझे फल मिलेगा. अगर हमको फल नहीं मिला तो हम डिटैच हो जाते हैं. अरे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, कुछ मार्क्स नहीं मिला, कुछ भी तो काम क्यों करें. Why should we work if there is no profit? तो ये दोनों के बीच में एक है, do your duty but do not expect results. So this is what Krishna is teaching here, that we should do our work but we should not expecting any result. So this is according to Buddhi Yoga. I think it's 9:18. So we'll see the purport. I think it's this purport is very big. So I think we'll take next time. If anybody has any question or answer, after these two verses, 2.40 and 2.41, they are very important verses, and especially for students or for devotees, they are very key verses. So ये 39 से हम लोग next time देखेंगे. If you have any questions, doubts, queries, then we can have around 10 minutes. We can. Yes, Anisha Jha, yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. प्रभुजी, my question is that लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए मंदिर क्यों जाते हैं, धाम क्यों करते हैं, घर पे भी तो हो सकता है और तुम ऐसे भी तो कर सकते हो. So what is the question? Why do people think like this, sir? Your question is whether the parents are not allowing you to go to temple or no. वो उसका नहीं है प्रभुजी, बट ऐसा क्यों, मतलब उनका थिंकिंग ऐसा क्यों रहता है लोग का, मतलब ऐसा. See, अगर भक्ति कहीं भी कर सकते हैं तो मंदिर इज द बेस्ट प्लेस टू डू भक्ति. See, अभी एक बात बताओ.
कैन यू नॉट स्टडी इन द हाउस? घर पे सब लोग स्टडी कर सकते हैं, लाइब्रेरी की जरूरत क्यों है? क्यों लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करते हैं? सो लाइब्रेरी इज कॉल्ड वाचनालय. वाचनालय बिकॉज यू ऑल लाइक माइंडेड पीपल जब मिलते हैं ना, इट बिकम्स इजी. सी जो शुद्ध भक्त होता है ना, कहीं भी कर सकता है, वो नरक में भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है. लेकिन हम जैसे लोग हैं ना, वी नीड एन एनवायरमेंट, वी नीड लाइक माइंडेड पीपल, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू इन द लॉन्ग रन. सो इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं और मंदिर इज वेरी नेसेसरी. मंदिर का मतलब क्या है? टेम्पल ऑफ माइंड. तो वहां पे मन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एंड देयरफॉर इट्स वेरी नेसेसरी टू गो टू द टेम्पल. सो आई थिंक I will say rather not going temple is difficult thing, going temple is easy thing. प्रभु जी मतलब कि उसमें कैसे बोलते कि मन में श्रद्धा भाव रखना चाहिए. बराबर बोल रहे हैं, बट सबको पता है हमारा मन कैसा है. 1 सेकंड के लिए श्रद्धा होती, 10 सेकंड के लिए क्या सोचते हैं? टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी नेगेटिव थॉट्स डू यू हैव डे? कितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं दिन में? बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल. सो इफ सी आगे आएगा, सी दिस क्वेश्चन का आंसर 6th चैप्टर में आएगा. 6th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में आपका आंसर आएगा. आपको सकते वहां पे माइंड के बारे में ना कृष्ण जो है बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे और अर्जुन ये सेम क्वेश्चन पूछेगा जो आप पूछ रहे ना कि मन क्या करेंगे, और कृष्ण कहते हैं मन को काबू, और अर्जुन क्या कहते हैं? I cannot control mind. Mind is more mighty than the wind. So Arjun wind को काबू कर सकते, वो mind को काबू नहीं कर सकता. हम क्या कर सकते? So not a good suggestion. And we can see nowadays बहुत सारे लोग जो है गलत डिसीजन ले रहे हैं. They are drinking, they are smoking, and they are destroying their own body. So I don't think that in any markets they are doing rational thinking. अगर rational कोई आदमी रहता ना, तो he will not injure his body by drinking, smoking and doing all the nonsense things which they are doing. And economic